وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ بہت اچھا رہے گا، شہزاد خوش ہو کر بولا، اور پھر خوشی کی وجہ بھی بتا دی۔ میری والدہ بھی میرا یہی نام رکھنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو گھر میں مجھے شاہد ہی کہتی ہیں۔ اور چلو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، تم شاہد اور شیتل کا نام فاطمہ، اور میرا نام بھی سن لو، رانی۔ اور میں نے بتایا کیسا لگا؟ آپ رانی لگتی بھی ہیں میم، شیتل بول اٹھی۔ اب یہ میم نہیں چلے گا، بھول جاؤ اسے، میں نے شیتل کو ٹوکا۔ اور پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ پھر وہی میم، کچھ بھی کہہ لو، میم نہیں کہو گی، میں نے شیتل کو تائید کی۔ اور شیتل سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی، تو پھر میں آپ کو مالکن کہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور عموماً مسلمانوں میں یہ لفظ رائج نہیں۔ شہزاد نے اعتراض کیا، تمہارا نام فاطمہ رکھا گیا ہے، اس لیے خاتون کو بیگم صاحبہ ہی کہو تو بہتر ہے۔ بیگم صاحبہ، شیتل نے دہرایا، اور شہزاد کو بھی تم شاہد بابو نہیں، شاہد صاحب کہنا۔ اور شاہد صاحب اور بیگم صاحبہ، اب ٹھیک؟ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اور فی الحال تم دونوں جس کمرے میں چاہو سو جاؤ، کل طے کریں گے کہ کس کا کون سا کمرہ ہے، اور مزید ملازمین کی بھی ضرورت ہوگی۔ خاتون، شہزاد بولا، اور یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اس سلسلے میں پہلے ہی میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں لائٹ آف کر کے سو گئی، اور دوسرے دن میں دیر تک سوتی رہی۔ میری آنکھ خود نہیں کھلی، مجھے شیتل نے جگایا۔ کیا بات ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کر انگڑائی لی، اور شیتل کے چہرے پر ماسک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی راجہ استاد آپ سے ملنے آیا ہے بیگم صاحبہ، اور آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے شیتل کچھ شرما سی گئی، اور اس کے منہ سے بیگم صاحبہ مجھے بہت اچھا لگا۔ آج میں خود راجہ استاد سے ملنے کے لیے جانے والی تھی، یہ اچھا ہوا کہ وہ خود ہی آ گیا۔ اسے بٹھا دیا نا؟ جی بیگم صاحبہ، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ کچھ ناشتے وغیرہ کا بندوبست کیا؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ شاہد صاحب ضروری سامان لینے آئے تھے، اور میں نے ناشتہ بنا لیا ہے۔ پہلا ناشتہ کریں گی یا اس آدمی سے ملیں گی؟ ناشتہ ابھی نہیں، اور منہ دھو کر میں ڈرائنگ روم میں جا رہی ہوں، اور تم 2 چائے بنا کر لے آنا۔ اور کمرے سے نکل کر میں باتھ روم کی طرف چلی گئی تو شہزاد کے چہرے پر بھی مجھے ماسک نظر آیا، اور مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے قریب آ کر بولا، خاتون، جو شخص اس وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے، اسی نے میرے سر پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کیا تھا۔ اس کی آواز میں شدت جذبات سے مرتعش تھی۔ وہم ہوگا تمہارا، وہ ایسا آدمی نہیں، اور میں اسے ایک مدت سے جانتی ہوں۔ اور پھر یہ کہ جس شخص نے تمہارے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا، اور بعد میں جس سے میں نے ایئر بیگ چھینا، وہ یہ شخص ہرگز نہیں تھا، اور تم نے اس کی صرف ایک ہی جھلک دیکھی تھی، اور میری تو اس سے مار کاروائی ہوئی۔ اور یہ کہہ کر میں نے خلاف توقع صورتحال کو بگڑنے سے بچا لیا۔ پھر واقعی میرا وہم ہوگا، شہزاد نے مطمئن انداز میں کہا، اور میں باتھ روم میں گھس گئی، اپنے کمرے میں آ کر میک اپ کیا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ ارے تم کہاں تھی رانی؟ کل میں آیا تو تالا پڑا ہوا تھا، اور صبح کے بعد شام کو دیکھا تو بھی تالا ہی ملا، راجہ استاد نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ایک ضروری کام سے گئی تھی، میں نے بات کو ٹال دیا۔ کیا کوئی کام تھا مجھ سے؟ کام تو خیر کوئی نہیں، محض تمہاری خیریت معلوم کرنا تھی۔ شانتی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اور شانتی کو میری طرف سے بہت پیار، مگر میری طرف سے پیار نہیں، ہمایوں کو کرنا ہے، میں نے ہنس کر کہا، اور میں بھی اس کا پاپا ہوں۔ کیا باپ بیٹیوں کو پیار نہیں کرتے؟ مگر جوان بیٹیوں کو نہیں، اور اس کے لیے بیٹیوں کے شوہروں کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اور میری بات سن کر راجہ استاد زور سے ہنس پڑا، اور پھر شیتل اور شہزاد کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہ دونوں میرے پرانے با اعتماد گھریلو ملازمین ہیں، تو کیا انہیں تم بمبئی سے اپنے ساتھ لائی تھی؟ اور پہلے تو تم نے ان کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور اسی وقت شیتل چائے لے کر آ گئی، اور راجہ استاد مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا، اور شیتل چلی گئی تو راجہ استاد نے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، استاد، میں آج خود تم سے ملنے آ رہی تھی۔
کام تھا ایک، اور مجھے 3-4 کام کے بندے چاہیے، ایسے کہ جو وقت پڑنے پر ہاتھ بھی دکھا سکے، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر اعتماد بھی کیا جا سکے، اور بظاہر ان کی مختلف حیثیتیں ہوں گی لیکن در حقیقت میرے محافظ ہوں گے۔ کیا تمہیں کسی قسم کے طرف سے خطرہ ہے رانی؟ راجہ استاد کے لہجے میں تشویش تھی۔ فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن تم جانتے ہو استاد کہ ہم لوگ جس دھندے میں ہیں اس میں کسی بھی وقت کوئی بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے، اور میں اسی لیے اپنے گرد ایک مضبوط حفاظتی حصار بنانا چاہتی ہوں۔ کتنے بندے چاہیے تمہیں؟ 3 یا 4؟ ایک تو سمجھو کہ مالی ہو گیا، دوسرا کوٹھی کا چوکی دار، تیسرا باورچی، اور باورچی کا کھانا پکانا آنا چاہیے، اور 3 افراد کے علاوہ ایک آدمی سودا صرف لانے کو بھی چاہیے۔ ان 4 کی حیثیت یہی ہوگی، لیکن دراصل 4 افراد کا اصل کام کوٹھی اور میری حفاظت کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انہیں باقاعدہ تنخواہ ملے گی۔ تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں، راجہ استاد بول اٹھا، اور تو پھر مجھے ملازمین کی بھی ضرورت نہیں، اور تم سمجھو تو رانی وہ میرے آدمی ہوں گے جو تمہاری حفاظت کریں گے، اور جب دن رات یہی میری خدمت میں رہیں گے تو کھائیں پئیں گے کیا؟ پتھر؟ وہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں۔ اور پھر استاد کو میں نے راضی کر ہی لیا کہ جن آدمی کو وہ بھیجے گا میرے تنخواہ دار ملازمین ہوں گے، اور ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی، اور راجہ استاد نے آئندہ روز صبح تک آدمی فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ اگلے روز میں ٹرام سے مطلوبہ سٹاپ پر اتر کر میں نے سڑک عبور کی اور پھر اپر چیت پور روڈ کی اس ذیلی آبادی میں داخل ہو گئی جہاں بنگال کے عظیم شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کا گھر جوڑا سا نکھو تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد میں اس گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی، اور ذرا آگے بڑھ کر میں اس مکان کے بند دروازے کے سامنے رک گئی جہاں ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکی تھی، اور میں نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی ہی تھی کہ سامنے سے ایک جیپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور میں قریب آ کر رک گئی۔ خطرہ میرے اندر جیسے کوئی چیخ اٹھا، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی۔ جیپ سے کودنے والے مسلح باوردی پولیس والے مجھے اپنے نرگے میں لے چکے تھے۔ جیپ میں بیٹھ جاؤ، ایک متوسط عمر کے پولیس افیسر نے اپنے ریوالور کی نال سے جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میرا قصور جناب؟ میں نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ قصور تمہیں پولیس ہیڈ کوارٹر آفس چل کر معلوم ہوگا، اور پولیس افسر نے سخت آواز میں جواب دیا، اور مجبوراً مجھے جیپ میں بیٹھنا پڑا، اور بیٹھتے ہی میں چونک اٹھی۔ میری سامنے ہی والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، اور یہ وہی عورت تھی کہ جس نے پچھلی مرتبہ اس مکان میں میرا استقبال کیا تھا، اور ارشاد حسین نے اسے ماں جی کہا تھا۔ اس عورت کی گرفتاری کا مطلب سمجھنا میرے لیے دشوار ثابت نہ ہوا، اور میرے علم میں یہ تو تھا ہی کہ ارشاد حسین کا تعلق کسی زیر زمین تنظیم سے ہے جو انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کرنے والی ہے۔ انگریز حکمرانوں کو یقیناً کسی طرح اس تنظیم کے ارادوں کا علم ہو گیا ہوگا، اور وہ تنظیم کی راہ پر لگ گئے، اور اس کا عملی تجربہ مجھے ارشاد حسین سے پہلی ملاقات میں بھی ہو چکا تھا۔ مٹیا برج کے جس مکان میں اسے میری ملاقات ہوئی تھی اسے بھی پولیس نے گھیر لیا تھا، اور وہاں ایک روز پہلے تک اسلحہ بھی موجود تھا، اور اس وقت تو ارشاد حسین بھی میرے ساتھ تھا، اور وہ مجھے مکان کے خفیہ دروازے کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسی ہی کوئی کہانی یہاں بھی معلوم ہوتی تھی، مگر اس مرتبہ میں پولیس کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور اگر وہ ادھیڑ عمر عورت جیپ میں موجود نہ ہوتی تو شاید میں اتنے درست اندازے قائم کرنے میں کامیاب نہ ہوتی۔ 4 مسلح پولیس والے نے جیپ کے پچھلے حصے میں مجھے اس ادھیڑ عمر عورت کو نرگے میں لیے تھے، اور پولیس افسر اپنے ایک ماتحت کے ساتھ جیپ کی اگلی نشست پر بیٹھا تھا، اور پولیس افسر کے آگے ہی جیپ چل دی۔ جیپ نے ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دھماکے سے فضا گونج اٹھی، اور پھر پے در پے ہونے والے دھماکوں سے جیپ رک گئی، اور اگلی جانب سے وہ دائیں کو جھک گئی تھی۔ پوزیشن لے کر جوابی فائرنگ کرو، پولیس افسر چیخا، اور میں سمجھ گئی کہ جیپ کا اگلا ایک ٹائر برسٹ ہو چکا ہے، اور جیپ کے ایک طرف جھک جانے کی یہی وجہ تھی۔ اور اپنے افسر کا حکم سنتے ہی 4 مسلح پولیس والے جیپ سے کود گئے، اور انہوں نے سائیڈ پر ہو کر سامنے فائرنگ شروع کر دی، اور 2 پولیس والے ایک طرف اور دوسری جانب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فائرنگ میں مصروف تھے۔
जीप में उधेड़ उम्र औरत और मेरे सिवा कोई पुलिस वाला नहीं था। तुम सीटों के दरमियान लेट जाओ। अचानक उधेड़ उम्र औरत ने मुझे मुखातब किया और मैं अगली सीट पर जा रही हूँ, और जब कार का ड्राइवर शायद जल्दी में जीप की चाबी लगी छोड़ गया है और मैं जीप स्टार्ट करती हूँ और ये कहते हुए अपनी सीट से उठी, लेकिन जीप का एक टायर शायद ब्रस्ट हो चुका है, जीप उलट जाएगी। तुम उसकी परवाह ना करो, जीप को सिर्फ इतनी दूर तक घसीटना है कि चारों पुलिस वाले उसकी करीब ना रह सकें, और जीप को रिवर्स गियर में भी तो चलाया जा सकता है। इस तरह वह चारों खुद ब खुद कुचलने से बचने के लिए उछलकर इधर उधर हो जाएंगे। मैंने तजवीज़ पेश की। और ये भी मुमकिन है, बल्कि यही बेहतर है, उसने मेरी तायद की। उसी वक्त मुझे अपने हैंड पर्स में भरे हुए रिवाल्वर की मौजूदगी का ख्याल आया, और पुलिस अफसर की हमाकत ही थी कि उसने मेरी तलाशी ज़रूरी नहीं समझी। ठहरो, मैंने उधेड़ उम्र औरत का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अब क्या हुआ? वो हैरत से बोली। कोई जवाब देने के बजाय मैंने पर्स खोलकर रिवाल्वर निकाल लिया, और ये वही रिवाल्वर था जो शंकर दादा ने बतौर तोहफा दिया था, और मैं एहतियातन उसे पर्स में रख लाई थी। चारों पुलिस वाले हम दोनों की तरफ से कतई गाफिल होकर जवाबी फायरिंग कर रहे थे, और मैंने इस इत्मीनान के साथ उनमें से एक का निशाना लिया और फायर कर दिया, और फिर दूसरा फायर करने में सिर्फ एक लम्हे की देर हुई, और यके बाद देगरे दो चीखें फिजा में गूंजी और फायरिंग की गूंज में मादूम हो गई, और बकिया दो पुलिस वालों ने अपने साथियों को गिर कर तड़पते देखा, और उसी वक्त सामने से आने वाली एक गोली एक पुलिस वाले को चाट गई, और वो चीख भी न सका क्योंकि गोली उसके सर पर लगी, और जिंदा बच जाने वाले पुलिस वाले ने मेरे हाथ में रिवाल्वर देख लिया था, और उसने अपना राइफल मेरी तरफ सीधी की ही थी कि मेरे रिवाल्वर ने एक और शोला उगला। उसी के साथ मैं तेजी से झुक गई, और मैंने पुलिस वाले को गिरते गिरते फायर करते देख लिया था। उधेड़ उम्र औरत मेरे अक्ल में ही थी, और वह यकीनन सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास न कर सकी, और यही उसके हक में खतरनाक साबित हुआ। पुलिस वाले की चलाई हुई गोली ने उस औरत के सीने में जगह बना ली, और वह चीख कर ऊंधे मुंह मुझ पर गिरने लगी, और उसके सीने से खून का फवारा बुलंद हो रहा था, और मैं अगर उछल कर एक तरफ ना हो जाती तो मेरे कपड़े खून से तरबतर हो जाते। मुझे उस उधेड़ उम्र औरत की मौत पर अफसोस हुआ कि मैं उससे बचा ना सकी। उसी के साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे हाथों 3 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, और मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, और फायरिंग में अब पहले जैसी शिद्दत नहीं थी। पुलिस के खिलाफ जो लोग फायरिंग कर रहे थे उनका पल्ला वाज़ेह तौर पर भारी मालूम हो रहा था, और मैं अभी जीप से उतरने ही वाली थी कि अकबी सिमत से एक शख्स झुका हुआ भागता हुआ दिखाई दिया, और वह जीप ही की सिमत दौड़ रहा था, और मैंने उसके हाथ में रिवाल्वर भी देखा। उसके जिस्म पर वर्दी नहीं थी, और उससे मैंने यही अंदाज़ा लगा लिया कि वह जो कोई भी है दुश्मन बहरहाल नहीं था, और फिर भी मैंने रिवाल्वर पर्स में नहीं रखा, और आने वाला मेरे लिए अजनबी ही था। माँ जी, वो जेब के करीब आती हुई सरसराती सी आवाज़ में बोला, और मैं चौंक उठी। उसकी आवाज़ से मैंने उसे पहचान लिया, और मेरा मुंह बेख्तियार निकला। अरशाद हुसैन, और उसके चेहरे पर मेकअप था। मामला, उसने भी मुझे पहचान लिया, और शुक्र है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मगर माँ जी को क्या जवाब दूं? वो अब जीप के करीब अंदर देख रहा था। काम आ गई, मैंने दुख भरे अंदाज में जवाब दिया। अब मेरे साथ है मामला, मेरे साथी बकिया पुलिस वालों को संभाल लेंगे। अरशाद हुसैन ने मुझसे कहा, और माँ जी की लाश उसे भी ले जाएंगे, आप मुतमिन रहें, और मुमकिन है पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पहुँच जाए। हमें उससे पहले इस इलाके से दूर निकल जाना है। फिर मैंने जीप से उतरने में देर नहीं की, और फायरिंग अब तक जारी थी। मैंने अपना रिवाल्वर पर्स में रख लिया, और अरशाद हुसैन जिधर से भागता हुआ था हम उसी की तरफ दौड़ते जा रहे थे, और उस गली के इख्तिताम तक पहुंचने से पहले कुछ और मसला अफराद आते दिखाई दिए, और वो लोग करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि अरशाद हुसैन के साथी थे। माँ जी मारी गई, अरशाद हुसैन ने उन्हें रुक कर बताया, और उनकी लाश जीप से उठा कर ले जाओ, और फिर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। अरशाद हुसैन की बात सुनकर वो लोग तेजी से आगे बढ़ गए, और उसी गली के तमाम दरवाजे बंद थे, और मुझे कोई खिड़की तक खुली नजर नहीं आई। अरशाद हुसैन ने अब अपना रिवाल्वर पेंट की जेब में रख लिया था, और उस गली से निकलकर वो एक सड़क पर निकल आया, और फिर सामने वाले एक गली में घुस गया, और वो सड़क भी मुझे सनसान ही नजर आई, क्योंकि वहाँ तक भी गोलियाँ चलने की आवाज़ें आ रही थीं, और गली में अलबत्ता इधर उधर 2-4 अफराद के गिरोह खड़े नजर आ रहे, और वह फायरिंग की आवाज़ों पर ही तबसरा कर रहे थे। अरशाद हुसैन मुझे अपने साथ लिए हुए ट्राम के स्टॉप पर आ गया।
ट्राम आकर रुकी तो मैं अरशाद हुसैन के साथ उसमें बैठ गई और वो ट्राम धर्म तले जा रही थी। खिलाफ तवक्का अरशाद हुसैन ने धर्म तले ही के 2 टिकट लिए और मुझे अब तक ये मालूम नहीं था कि अरशाद हुसैन कहाँ जा रहा है, और उसने धर्म तले के 2 टिकट लिए तो मुझे ख्याल आया कि उसे अपने साथ कोठी क्यों न ले चलूँ। और धर्म तले पहुँचकर अरशाद हुसैन ने मुझसे कहा कि शाम का वक़्त है, विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ चलते हैं, वहाँ सब्ज़ादार पर किसी ऐसी जगह बैठकर बात। आप मेरे साथ चलें अरशाद, मैं बोल उठी, मगर कहाँ है जहाँ हम दोनों ही महफूज होंगे और इत्मीनान से बात कर सकेंगे। उससे एक मकसद भी पूरा हो जाएगा, आप मेरी नई कोठी भी देख लेंगे। नई कोठी? वो चौंक कर बोला कि आपने नई कोठी भी धर्म तले में ही खरीदी है, और आपका ख्याल तो पार्क सर्कस के इलाके में कोई मकान खरीदने का। वो जू इरादा बदलना पड़ा और मैंने उसके साथ सड़क अबूर करते हुए बताया, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आज आपको फिर मेरी वजह से सख्त जहमत उठाना पड़ी और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। शायद वो 4 पुलिस वाले आप ही की गोलियों का निशाना बने जिनकी लाशें जीप के करीब पड़ी थीं, अरशाद हुसैन ने कहा, और उनमें से सिर्फ 3 मेरे हाथों मारे गए। और ये कहकर मैंने अरशाद हुसैन को जीप में पेश आने वाले वाक़े से तफसील के साथ आगाह कर दिया। इसका मतलब ये है कि माँ जी का आखिरी वक्त आ ही गया था, वरना वो इस तरह ना मारी जाती। और अरशाद हुसैन ने ठंडा सांस भरा और फिर बताने लगा, मामला वो बड़ी अजीम औरत थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में अपने शोहर और 2 बेटों की वो पहले ही कुर्बानी दे चुकी थी और आज खुद भी कुर्बान हो गईं। अब उनके ख़ानदान का सिर्फ एक फ़र्द बचा है, छोटी बेटी उर्मिला, और उसकी उम्र आप ही जैसी होगी। सोचता हूँ कि उसे माँ के मरने की खबर होगी तो क्या हाल होगा उसका। और जब उर्मिला के बाप को गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसी दी गई थी तो वह सिर्फ 5 साल की थी, और 4 साल पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए जनूबी हिंद में उसके 2 नौजवान भाई भी मारे जा चुके हैं। और क्या सितम है मामला कि माँ जी को गोली मारने वाला एक हिंदुस्तानी ही था, और एक ऐसा शख्स जिससे ये भी मालूम नहीं था कि वो किसे गोली मार रहा है, और उसने तो मेरा निशाना लिया था जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। और माँ जी अकब में थी, और मैं अगर तेज़ी से झुक ना जाती तो माँ जी को गोली ना लगती। और ये कहते मुझे माँ जी की नौजवान बेटी उर्मिला का ख्याल आया, और मैंने अरशाद हुसैन से पूछा, क्या उर्मिला भी माँ जी के साथ उसी घर में रहती हैं? नहीं, वो असम में हैं, अरशाद हुसैन ने बताया। असम में वो गोरीला वार की तरबियत हासिल कर रही हैं, और उसे वहाँ गए तकरीबन 1 साल हुआ है। ये अचानक हुआ क्या अरशाद? पुलिस ने वहाँ छापा कैसे मार दिया? अचानक कुछ भी नहीं होता मामला, अरशाद हुसैन से लहजे में बोला। हमें अचानक इसलिए मालूम होता है कि हम असबाब से बेखबर होते हैं, और जिसे हम हादसा कहते हैं वो अचानक या एकदम नहीं होता, बल्कि वक़्त बरसों उसकी परवरिश करता है। और मुझे इस वाक़े का इल्म उस वक़्त हुआ जब किसी भी तरीके के आपको रोकना मुमकिन नहीं था, और चंद रोज़ से हमारे कुछ ऐसे साथी माँ जी के घर में छुपे हुए थे और पुलिस की नज़र में आ चुके थे। और आज जब ये मालूम हुआ कि पुलिस छापा मारने वाली है तो उन्हें वहाँ दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। उसके बावजूद पुलिस ने छापा मारा, और छापे की नाकामी पर उन्होंने झंझलाकर और सबब और किसी सबूत के बगैर माँ जी को हिरासत में ले लिया। और मालूम नहीं कैसे उनके दिमाग में ये बात आ गई कि मुमकिन है माँ जी का कोई और साथी भी उनके हत्थे चढ़ जाए, और माँ जी को हिरासत में लेने के बाद वो भी उसी लिए वहाँ से गए नहीं। वो माँ जी के घर किसी के आने का इंतज़ार करते रहे, और ये सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई तशवीशनाक थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप आने वाली हैं, और मैं ये भी जानता था कि मेकअप में होंगी, और ऐसी सूरत में आपको पहचानना भी दुश्वार था। और जब तक कि मैं आप माँ जी के दरवाजे पर दस्तक ना दें, उधर पुलिस के वहाँ रुक जाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। और हमने एक और मकान में मोर्चा बना लिया, और पुलिस जीप को इसी रास्ते से गुजरना था। हम हर कीमत पर माँ जी को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लेना चाहते थे, मगर अफसोस कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। कुछ देर तक मेरी कोठी की नशस्त गाह में बोझल सी खामोशी तारी रही, और इसी दौरान में शीतल चाय वगैरह रख कर चली गई। और जब शीतल नशस्त गाह से निकल गई तो अरशाद हुसैन ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, मामला तो आपकी वो मुलाजमा नहीं, खुफिया पुलिस वाले जिसकी निगरानी कर रहे हैं, और कल रात जो आपके के साथ एक हमरा खुफिया वालों की आंखों में धूल झोंक कर मूसा सेठ के मुसाफिर खाने से फरार हो गई थी। हाँ, ये वही है। मैंने अरशाद हुसैन से राजदारी ज़रूरी नहीं समझी, मगर ये और इसका साथी खुद वहाँ से फरार नहीं हुए। फिर
दोनों को मैंने वहां से फरार कराया था। मगर क्यों मामला जी? इन लोगों की वजह से तो आप पहचानी जा सकती हैं। अरशाद हुसैन ने दानिश में मुझे खतरे का एहसास दिलाया। अरशाद, अगर आपने इस लड़की को पहले भी देखा होता तो आप हरगिज ऐसा ना कहते। वो क्यों मामला जी? अरशाद हुसैन ने अपने मखसूस लहजे में पूछा। मैंने दोनों के चेहरे बदल दिए हैं, और इस लड़की का चेहरा और नाम भी, और दूसरे बंदे का भी। फिर भी मैं समझ नहीं सका कि आप ये खतरा मुँह लेने की जरूरत क्या थी। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं अरशाद कि जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, वो आदत बन जाते हैं। और आपके सीने में इतना गुजाज दिल भी है मामला, मुझे इस पर हैरत है। भला आपको देखकर कौन कह सकता है कि अभी कुछ देर पहले 4 जीते जागते इंसानों को मौत की नींद सुला चुकी हैं? कि आपके ख्याल में वो लोग जिंदा थे अरशाद? मैंने खेद लहजे में कहा। हम ऐसी बातें करते हुए अमूमन एक बात नज़रअंदाज कर जाते हैं मामला, कि माश आदमी की बहुत बड़ी मजबूरी है और हर शख्स कुर्बानी देने का अहल नहीं होता। अंग्रेज हाकिमों ने शायद इसी मजबूरी को खरीद लिया है। गुर्बत व अफलास के मारे हुए लोग खुद बिकना चाहते हैं, मगर अरशाद ऐसा कब तक होता रहेगा? उस वक़्त तक मामला के जब तक सोए हुए ज़मीर बेदार नहीं हो जाते, और उसके लिए एक तवील जद्दोजहद की ज़रूरत है। ये बताएं अरशाद कि आपका महकमा अब तक मेरी तलाश से दस्तबरदार नहीं हुआ, और कुछ मालूम हुआ कि वो किस लिए मेरी तलाश में है? मैंने दरियाफ़त किया। आपकी तलाश जारी है, और इस तलाश का सबब अब तक मालूम नहीं हो सका, और पहले ही की तरह अब भी इस सिलसिले में इंतहाई राजदारी बरती जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर पता चल गया कि चंद आला अंग्रेज़ हकाम बतौर ख़ास आपके मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। और उसी वक़्त मेरे ज़हन में एक अछूता ख्याल आया, और मैंने उसी के ज़ैर असर अरशाद हुसैन से पूछा कि अरशाद, क्या आपने इन अंग्रेज़ हकाम में से किसी की निशानदही कर सकते हैं? ऐसा शायद इसलिए मुश्किल होगा मामला कि यकीनी तौर पर किसी के मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहा जा सकता। अरशाद हुसैन ने जवाब दिया, महज शक की बिना पर किसी का नाम लिया जा सकता है। फिर भी एक शख्स के बारे में यकीनी तौर पर यह कहना मुमकिन है कि अरशाद की वो हकीकत से बेखबर नहीं हो सकता। वो कौन मामला? तुम्हारे महकमे का सरबराह। और आपको ये सुनकर हैरत होगी मामला कि उससे भी ऊपर से हदायत मिलती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो हदायत देने वाले से वाकिफ़ है। हाँ, इस हद तक आपका ख्याल दुरुस्त है। यानी आपके महकमे का सरबराह आला अंग्रेज़ हकाम की निशानदही करने का अहल है, जिनकी एमा पर आपका महकमा मेरे मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात हासिल कर रहा है। अगर ये भी मालूम हो जाए मामला कि पसे पर्दा आपके बारे में कौन से आला अंग्रेज़ हकाम दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इससे क्या हासिल होगा? हैरत है अरशाद कि आप इतने सामने की बात नहीं समझे। उन अहकाम का अगर इल्म हो जाए तो सारा मुअम्मा हल हो सकता है। जब पसे पर्दा चेहरे बेनकाब हो जाएंगे तो फिर ये मालूम करना भी आसान हो जाएगा कि मेरे खिलाफ तहकीकात का मकसद क्या है। तो क्या आप वाकई आगाह नहीं मामला कि आपके खिलाफ किस लिए आला सतह पर तशवीश पाई जाती है? कमाल है अरशाद, अगर मुझे यही इल्म होता तो फिर रोना किस बात का था? मैं तो खुद कतई बेखबर हूँ। अगर आपके जवाब को सही मान लिया जाए मामला, तो वाकई ये बड़ी हैरान कुन बात है कि खुद साहब मामला को कुछ मालूम नहीं। हकीकत यही है अरशाद, इसीलिए इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती हूं, और मेरे नज़दीक अब इसकी एक ही ज़रूरत है। वो क्या? आपके महकमे के सरबराह को इस पर मजबूर कर दिया जाए कि वो पसे पर्दा चेहरों को बेनकाब कर दे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ना होता अरशाद तो मैं ये बात ही ज़ुबान पर ना लाती। और ये कहते हुए मैंने तवील सांस ली, और आपसे मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना तावन चाहती हूँ कि अरशाद अपने महकमे के सरबराह की निशानदही कर दें। और अरशाद हुसैन मेरी बात सुनकर चौंक उठा और फिर कहने लगा, मामला, आप शायद कोई खतरनाक कदम उठाना चाहती हैं, और मैं बहरहाल आपको यही मशवरा दूंगा कि ऐसा ना करें। आपने किस तरह समझ लिया कि मेरा इरादा कोई खतरनाक कदम उठाने का है? आपकी बातों से इतना अंदाजा तो खैर लगाया ही जा सकता है। शायद आपका इरादा मेरे महकमे के सरबराह को अगवा करना है, ताकि उससे उन आला अहकाम के बारे में मालूम कर सकें कि जिनकी एमा पर आपके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो इसमें खतरनाक कदम कौन सा है? मैं ये नहीं समझ सकी कि आपके नज़दीक खुफिया पुलिस के सरबराह को अगवा करना खतरनाक कदम नहीं। और अरशाद हुसैन ने हैरत से कहा, मैं इसे कोई खतरनाक कदम नहीं समझती। अरे यहाँ से लेकर दहली तक खुलबली मच जाएगी। आप इसे खतरनाक कदम नहीं कह रही तो मच जाए खुलबली, इससे मुझ पर क्या फ़र्क पड़ता है?
آپ دراصل سمجھ نہیں کہ اعلیٰ انگریز افسر کے اغوا کا مطلب کیا ہے، یہ کتنا سنگین جرم ہے اور اس کے کتنے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کیا ہوگا مجھے بتائیے نا، کیا بگاڑ لیں گے وہ میرا؟ آپ کو تو شاید کچھ نہ بگڑے، مگر سینکڑوں بے گناہ لوگ حراست میں لے لیے جائیں گے، اور جو مشتبہ افراد زیر حراست ہیں ان پر تشدد کی انتہا کر دی جائے گی۔ اور آپ کو شاید علم نہیں کہ جو مشتبہ افراد زیر حراست ہیں ان میں ہمارے ساتھی بھی ہیں، اور ان پر زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آپ کے ساتھیوں کو قید سے رہائی مل جائے پھر، اور میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، رہائی مگر کیسے؟ ارشاد حسین بدستور حیران ہو کر بولا، تو پھر سنیے، آپ کے محکمے کے سربراہ کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد انگریز حکمرانوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھیوں کو رہا کر دیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں؟ کیا حکمران اپنے ایک اعلیٰ افسر کی زندگی بچانے کے لیے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیں گے؟ لیکن اس طرح تو اغوا کی ذمہ داری ہمارے ساتھیوں کو قبول کرنا پڑے گی۔ تو کیا ہوا کہ آپ کے ساتھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے؟ یہ معاملہ ایسا ہے معاملہ کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن ذاتی طور پر آپ سے متفق ہوں۔ خیر، یہ بات کی بات ہے کہ آپ کے ساتھی اغوا کی ذمہ داری قبول کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ فی الحال تو آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ اپنے سربراہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں یا نہیں، میں نے سوال کیا، اور انکار کا میرے پاس جو جواب تھا اسے آپ نے رد کر دیا۔ پھر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے آپ نے اسے یار شخص کو دیکھا ہو، یا آپ کی اس سے ملاقات کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ کی پہلی کوٹھی کے قریب ہی رہتا تھا، ڈسوزا نام ہے اس کا، اور ڈسوزا کا نام سن کر میں تقریباً اچھل پڑی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈسوزا خفیہ پولیس کا سربراہ ہوگا۔ اس کی اصل شخصیت ظاہر ہونے کے بعد میں جیسے ماضی میں کھو گئی، اور وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد مجھ پر آج واضح ہوا، اور پولیس کو میرے پیچھے لگانا اس کی انتقامی کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس طرح وہ میرے بارے میں یہ معلوم کرنے کا خواہشمند تھا کہ میں کون ہوں، اور مجھ سے تعلقات بڑھانا اس کا ذاتی مسئلہ بہرحال نہیں تھا، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ اس کی ڈوری اوپر سے ہلائی جا رہی تھی، اور میں اپنے مزاج کے مطابق اس کے فریب میں نہیں آئی اور اسے دھتکار دیا، تو اس نے دوسرے ذرائع سے میرے متعلق تحقیقات جاری رکھی، اور اب مجھ پر روز روشن کی طرح سب کچھ ظاہر ہو چکا تھا۔ میں اپنی لا علمی کے سبب جس ڈسوزا کا ذاتی فعل سمجھی تھی، وہ اس ذاتی فعل نہیں تھا۔ آپ کہاں کھو گئے معاملہ؟ اور مجھے خاموش دیکھ کر ارشاد حسین نے ٹوکا، اور میں چونک کر بولی، ارشاد، آپ نے آج اپنے محکمے کے سربراہ کا نام بتا کر میری بہت سی الجھنیں ختم کر دیں۔ اور پھر میں ارشاد حسین کو بتانے لگی کہ ڈسوزا نے کس طرح میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے کس طرح اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور اسی ضمن میں ریس کورس اور اسٹرپ ٹیز ڈانس کا ذکر بھی کیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے قریب ہو کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش خود میرے محکمے کے سربراہ کی تھی، اور اس سے بھی معاملے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال کوئی معمولی بات نہیں کہ محکمے کا سربراہ بذات خود کسی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اور ارشاد حسین نے اظہار خیال کیا اور پھر پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہی جو پہلے تھا، میں نے اطمینان سے جواب دیا، میں اسے اغوا کر کے زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گی۔ کیا کہیں کل آپ سے ملاقات ممکن ہے؟ اور میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ اغوا کی ذمہ داری قبول کریں گے یا نہیں۔ آپ کل بھی یہاں آ جائیے، وقت بتا دیں تاکہ میں کوٹھی پر ہی رہوں۔ ہر چند کہ آپ سے میری جلدی ملنا خصوصاً خود آپ کی کوٹھی پر مناسب نہیں، لیکن اب آپ کو کسی اور جگہ بلا کر مزید آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور میری وجہ سے آج ہی آپ کو زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرنا پڑا، اور میں کل رات 8 اور 9 بجے کے درمیان یہیں آ جاؤں گا، اور کل بھی کیونکہ میرے چہرے پر ایک نیا میک اپ ہوگا، اس لیے بطور شناخت بتا دوں کہ اپنا نام میں ہردیال سنگھ بتاؤں گا۔ ہردیال سنگھ، میں نے وہ نام دہرا دیا، اور ٹھیک ہے، مجھے یاد رہے گا۔ چائے اور منگواؤں؟ نہیں، اب میں اجازت چاہوں گا، یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور میں اسے کوٹھی کے بیرونی دروازے تک چھوڑنے گئی اور واپس آ کر شیتل سے کھانا لگانے کو کہا۔ اگلے روز وقت مقررہ پر راجہ استاد اپنے ساتھ 4 افراد کو لے آیا، اور وہ چاروں ہی مسلمان تھے، عبدل، غنی، رحمت اور یہ میرا شیر قاسم۔
राजा उस्ताद ने उन चारों का मुझसे तारुफ कराया और गनी खाना भी अच्छा पका लेता है और अब्दुल तुम्हारे लान में लगे हुए पौधों की बखूबी निगाहदाश्त कर सकता है और कासम के लिए मैं चौकीदार रखने की सिफारिश करूंगा। इसका निशाना बड़ा सच्चा है। रहा रहमत तो उससे ऊपर का काम लिया जा सकता है। ये तुमने कमाल कर दिया उस्ताद, इतनी जल्दी इतने अच्छे दांटे छांट लाए और मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में भी बता दिया है कि तुम कौन हो ताकि ये ऊंचा उड़ने की कोशिश ना करें। राजा उस्ताद ने बताया, और ये तुमने अच्छा किया। वैसे जो ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है मुझे उसी के पर काटना भी आते हैं। तुम कहो तो इनका इम्तिहान ले लूं। और मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मैं खुद भी ये देखना चाहती थी कि राजा उस्ताद के फराहम करदा आदमियों में कितना दम खम है। बखुशी तुम फ्री में इनसे काम नहीं ले रही, माल खर्च कर रही हो आखिर, और तुम्हें इनका इम्तिहान लेना चाहिए और तुम ना कहती तो मैं इसके लिए कहता। तो फिर आओ मेरे साथ। मैं खड़ी हो गई और फिर उन्हें कोठी के लान में ले आई और मुझे इल्म नहीं था कि शहजाद भी उधर आ निकलेगा। और वह मुझे इस वक्त नजर आया जब मैं राजा उस्ताद से चाकू लेकर खोल चुकी थी। और तुम में से कौन मेरे हाथ से ये चाकू छीन सकता है? मैंने उन चारों को मुखातब किया। रानी तुम्हारे हाथ से तो राजा उस्ताद चाकू नहीं छीन सकता, और फिर इन लौंडों की क्या मजाल है? राजा उस्ताद बोल उठा। तुम इन्हें कोशिश तो करने दो उस्ताद, और तुम जिससे अपना शेर कह रहे थे उसे आगे कर दो। चल भाई कासम, चढ़ जा बेटा सूली पर। उस्ताद ने हंसकर उन चारों में से एक का बाजू पकड़कर उसके आगे धकेल दिया और मैं एक हाथ में चाकू थामे झुककर उसके सामने खड़ी हुई और वो भी थोड़ा सा झुककर मेरी तरफ बढ़ा। और फिर उसने मुझे डाग देने के लिए एक तरफ झुकाई दी और दूसरे ही लम्हे मुझ पर जिस्त लगा दी और मैंने दानिस्ता उस जगह से नहीं हटी और मेरे दाएं हाथ की कलाई को कासम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और अब वो मेरे ऊपर था और मैं घास पर पड़ी और उसने मेरी कलाई पर जोर लगा दिया, मगर उसे झुका ना सका और मेरे हाथ से चाकू छीन सका। अब समझो कासम मेरी बारी है। और ये कहते ही मैंने अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में समेटा। उसी के साथ कासम की गर्दन मेरे दोनों टांगों की गिरफ्त में आ गई और दूसरे ही लम्हे वो मेरे ऊपर से उछलकर दूर जा गिरा और मैं उठकर खड़ी हो गई। खड़े हो जाओ, मैंने उसे हुक्म दिया। ये लो चाकू। मैंने चाकू उसकी तरफ उछाल दिया और बोली, अब तुमसे चाकू छीन कर मैं दिखाती हूँ। और चाकू लपकने के बाद बिल्कुल मेरी ही तरह झुककर खड़ा हो गया और मैंने झपट कर उसकी दाईं कलाई पर खड़ी हथेली मारी। हर चंद के मैंने यह ख्याल रखा था कि ज्यादा चोट ना लगे। फिर भी उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके साथ चाकू छूट कर नीचे गिरने लगा और इसे तेजी से झुककर मैंने लपक लिया। अब ऐसा करो कि तुम चारों मिलकर मुझसे ये चाकू छीनो। और मेरा हुक्म सुनते ही वो चारों मुझ पर झपट पड़े और मैं खड़े खड़े अपनी जगह से उछली और उनके ऊपर से जैसे उड़ती हुई दूर जा खड़ी हुई। उधर मैंने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया और वो फिर पलटकर मुझ पर हमला आवर हुए और इस मर्तबा मैंने उनमें से एक को टांग उड़ाकर गिरा दिया और दूसरा अपना जबरा सहलाता हुआ बैठ गया और तीसरा आगे बढ़ा तो उसकी पुश्त पर लाद कर दूर फेंक दिया और चौथे के सीने पर मेरी फ्लैंक किक पड़ी तो वो चीख कर लंबा हो गया। उठो, मैंने उन्हें ललकारा और अपने हाथ में पकड़ा चुआ चाकू दूर घास में फेंक दिया। चाकू उठाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगी। और वो चारों निपे तले कदम उठाते हुए मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। उन चारों की नजरें मुझ पर जमी हुई थीं और चाकू जब उनके चंद कदम के फासले पर रह गया तो मैंने तेजी के साथ अपनी जगह से हरकत की और एक मर्तबा फिर उन चारों को जमीन चाटना पड़ी। उनमें से कोई भी चाकू नहीं उठा सका। खड़े हो जाओ। उन्हें फिर मेरा हुक्म मिला और चाकू जहां पड़ा था उस जगह को घेर कर कोशिश करो कि मैं चाकू ना उठा सकूं। वो सब कराहते लंगड़ाते उस जगह पहुंच गए और चारों ही गोया मेरी राह में दीवार बनकर खड़े थे और मैंने उन्हें दम लेने का मौका दिया और फिर जस्त भरकर करीब पहुंच गई। इस मर्तबा कासम ने हिम्मत की और मुझ पर झपट पड़ा, मगर ये कोशिश उसे महंगी पड़ी और मैंने एक तरफ हटते हुए उसकी पिंडली पर ठोकर मारी और वो ऊंधे मुंह जमीन पर आ रहा। उधर तो कासम गिरा और उधर अब्दुल और गनी के शानों पर जैसे क़यामत टूट पड़ी और वह पहले चीखते हुए बैठ गए और फिर लड़ गए। अब सिर्फ रहमत मेरे सामने था और उसने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर खिलाफ तवक्का उछलकर मेरी ठोड़ी पर अपने सर की टक्कर मारना चाही और मैं तेजी से पीछे हट गई। फिर मेरा घोंसा उसके सीने पर पड़ा और वो उठ गया और करीब ही चाकू पड़ा था और मैंने उसे उठा लिया। लो उस्ताद, खेल खत्म। और मैंने चाकू राजा उस्ताद की तरफ उछाल दिया। राजा उस्ताद ने चाकू लपक कर मुझसे कहा, फेल या पास। और इस दौरान में वो चारों उठकर खड़े हो चुके थे।
چل جائیں گے بس، میں نے جواب دیا، اور پھر دور کھڑے اور تصویر حیرت بنے ہوئے شہزاد کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ شہزاد قریب آ گیا تو میں نے ان چاروں سے ان کا تعارف کرایا، اور یہ شاہ صاحب ہیں میرے مینیجر، تم سب کو گھریلو ذمہ داریوں کے سلسلے میں انہی کے احکام کی پابندی کرنا ہے۔ اور جواب میں انہوں نے سر ہلائے تو شہزاد نے نام بے نام انہیں متعارف کرا دیا، اور پھر بولی، ان کے علاوہ فاطمہ بھی ہے جو میری خاص ملازمہ ہے، اسے بھی تم دیکھ لو گے۔ پھر میں نے شہزاد سے کہا کہ ان چاروں کے رہنے کا بندوبست سرونٹ کوارٹر میں کر دے، ابھی یہ بچے ہیں، تمہاری جھٹک کیسے جھیل سکتے ہیں۔ پھر بھی میں نے چاروں کو مسئلہ کر دیا ہے اور چاروں کے پاس ریوالور موجود ہے، راجہ استاد نے بتایا، اور میں نے ان سے بھڑتے ہوئے یہ بات محسوس کر لی کہ بہرحال انہیں میں یہ ہدایت کر دوں گی کہ میری اجازت کے بغیر گولی نہ چلائیں، اور جب تک اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو بلا وجہ مار دھاڑ مجھے پسند نہیں۔ ہاں استاد، تم سے ایک بات اور کرنا تھی، کوئی ایسی جگہ ہے تمہارے پاس جہاں کسی کو اغوا کر کے رکھا جا سکے، کسی مرد کو یا عورت کو؟ راجہ استاد نے معلوم کیا۔ مرد یا عورت سے کیا فرق پڑتا ہے استاد؟ پڑتا ہے فرق رانی، عورت کے لیے کم اور مرد کے لیے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ وہ کیسے اور کس لیے استاد؟ جگہ کا بندوبست ہو جائے گا، یہ بتاؤ کہ اغوا کرانے کے لیے بندے بھی چاہیے تمہیں؟ کیوں، کیا ان چاروں سے کام نہیں چل جائے گا؟ چل تو سکتا ہے اگر تم بھی ان کے ساتھ رہو، اور راجہ استاد نے جواب دیا، کوئی تجربہ کار بندہ ان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے جو رہنمائی کر سکے۔ تو پھر استاد، تم سے زیادہ تجربے کار کون ہو سکتا ہے؟ اور میں نے دانستہ اس معاملے سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ تم کہتی ہو تو پھر کس طرح انکار کر سکتا ہوں، مگر ہے کون؟ وہ بھی بتا دوں گی، مگر پہلے یہ سن لو استاد کہ دن رات اس کی نگرانی کرنا ہوگی، پھر تو سالے کو اپنے گھر میں ہی رکھنا پڑے گا۔ نہیں استاد، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، وہاں شانتی بھی ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ اسے معلوم ہو کہ جہاں وہ اغوا ہونے کے بعد رہا تھا وہاں کوئی لڑکی بھی تھی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ تمہیں یا تمہارے کسی بھی آدمی کو اپنا چہرہ چھپائے بغیر اس کے سامنے نہیں آنا، ورنہ بعد میں یہ بے احتیاطی تمہارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ خطرناک تو اس وقت ثابت ہوگی جب وہ زندہ بچ کر جائے گا، اور راجہ استاد پرجوش آواز میں بولا، زندہ بچ کر تو جانا ہے اسے، اور میں اسی لیے تو احتیاط برتنے کو کہہ رہی ہوں۔ اچھا خیر، تو یہ بھی بتا دو کہ وہ ہے کون اور رہتا کہاں ہے؟ وہ ایک اعلیٰ انگریز افسر ہے اور وہ دھرم تلے میں ہی رہتا ہے، میں نے بتا دیا۔ اعلیٰ انگریز افسر؟ راجہ استاد نے حیرت سے کہا، معاملہ کچھ ٹیڑھا لگتا ہے، کس محکمے کا افسر ہے؟ خفیہ پولیس کے محکمے کا سربراہ ہے وہ۔ راجہ استاد کو میں اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی تاکہ اس کی ہمت نہ پڑے تو میں کوئی اور راستہ تلاش کروں، اور اگر میں اس کے ساتھ مخلص نہ ہوتی تو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ معمولی قسم کے گنڈے بدمعاش تو صرف پولیس کا نام سن کر ہی کان پکڑنے لگتے ہیں، اور یہ معاملہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے خفیہ پولیس کا تھا، اور وہ بھی اس کے سربراہ کی اغوا کرنے کا۔ مجھ سے حقیقت معلوم ہونے کے بعد راجہ استاد کچھ دیر جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اور اچھی طرح سوچ لو استاد، میں اسے خاموش دیکھ کر بولی، اگر یہ معاملہ تمہارے بس کا نہیں تو ہاتھ نہ ڈالو، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا فضول باتیں کرتی ہو رانی، راجہ استاد کو آخر تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ ان چاروں کے ساتھ نہ رکھوں، اور میرے ساتھ ایک تو ہمایوں ہونا چاہیے، اور دوسرے اگر تم کہو تو شنکر دادا کو بھی تمہارا نام لے کر بلوا لوں، اور اپنے ساتھ وہ جگہ کو بھی لیتا آئے گا، اور ہم چاروں کافی رہیں گے۔ تو پھر شنکر دادا کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا، اور اگر شنکر دادا ہی کو ساتھ لینا ہے استاد تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جگہ کا معاملہ بھی اسی پر چھوڑ دو۔ ایسا کیوں نہ کروں کہ آج شام تم اسے ساتھ لے کر میرے پاس آ جاؤ، اور میں خود اس سے بات کر لوں گی، کیا خیال ہے تمہارا؟ اور یہ بھی اچھا رہے گا رانی، راجہ استاد نے میری تائید کی۔ اور پھر راجہ استاد چائے پی کر شام کو شنکر دادا کے ساتھ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، اور میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر میں ڈسوزا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سن کر چونک اٹھی۔ آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی، اور میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو شہزاد دروازے میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ خاتون، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ حاضر ہو کر پوچھ رہے ہو کہ حاضر ہو جاؤں؟ میں نے ہنس کر کہا، آ جاؤ۔ یہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کو ملازم رکھ لیا ہے؟ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا ان کے سر پر سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ سینگ تو خیر نہیں نکلے، لیکن وہ
وہ سب ہی جرائم پیشہ معلوم ہوتے ہیں، اور کیا تمہیں اس سے انکار ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں سے جرائم پیشہ افراد ہی بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں؟ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص سے بھیڑ سکو جو مسئلہ ہو؟ اور میرے لیے یہ ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے یقیناً ممکن ہے خاتون، شہزاد نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور مجھے تو آپ نے حیران کر دیا، آپ کی اس صلاحیت کا مجھے پہلے علم نہیں تھا۔ ارے وہ تو محض ایک نمائشی مقابلہ تھا، اور میں نے یہ کہہ کر بات کو ٹالنا چاہا کہ یہ لوگ کیسے بھی صحیح مگر ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وقت پڑنے پر یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور نہ ہی کسی شعبدہ باز قسم کے سادھو سے ڈریں گے، اور میں نے اسی لیے انہیں ملازم رکھا ہے، اور تم بھی ان پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ آپ کا حکم ہے خاتون، تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ اور شہزاد نے طویل سانس لے کر گویا ہتھیار ڈال دیے۔ اسی شام 4 بجے کے قریب مجھے شنکر دادا اور استاد نے آنے کی اطلاع ملی۔ اس وقت میں سو کر اٹھی تھی اور میں نے دانستہ اپنے چہرے پر ماسک پہننا ضروری نہیں سمجھا۔ ان لوگوں سے بھلا مجھے اپنا اصل چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے نکلی اور نشست گاہ کی طرف جانے لگی تو شہزاد نے مجھے ٹوکا۔ اپنوں سے چہرہ نہیں چھپاتے، میں نے مسکرا کر کہا، اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ شنکر دادا مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ پھر آگے بڑھ کر میرے پیر چھوئے۔ کیوں گنہگار کرتے ہو مجھے شنکر دادا، بیٹھو۔ اور میں آگے بڑھ کر راجہ استاد کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور یہ تو میرے لیے عزت کی بات ہے رانی کہ تم مجھے اپنے پیر چھونے دیتی ہو۔ اور وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں استاد، تم نے شنکر دادا سے بات کر لی؟ میں نے راجہ استاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں رانی، راجہ استاد نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ جب تمہارے پاس چلنا ہی ہے تو پھر تم ہی بات کر لو تو بہتر ہے۔ ویسے میں نے اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ رانی مجھ سے اور تم سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے۔ بتا دیتے تو اچھا تھا، خیر۔ میں نے یہ کہہ کر شنکر دادا کو مخاطب کیا، کوئی خاص یا اہم کام ہے تو اسے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صرف ایک شخص کو اغوا کرنا ہے۔ ہاں، وہ شخص ضرور اہم ہے جسے اغوا کیا جانا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں رانی کے 4 لوگ بھی زیادہ ہیں، راجہ استاد اور ہمایوں کی بھی ضرورت نہیں، میں اور جگہ اسے اٹھا لائیں گے۔ شنکر دادا بولا، اغوا کرنے کے بعد تمہیں اسی کے پاس اپنے پاس رکھو گے؟ شنکر دادا، میں نہیں چاہتی کہ وہ دھرم تلے ہی کے علاقے میں رہے، کیونکہ اسے یہاں سے اغوا کرنا ہے، اور ہاں پہلے سے یہ سن لو کہ وہ ہے کون۔ تم شاید اسے آسان شکار سمجھ رہے ہو۔ میرے خیال میں راجہ استاد اور ہمایوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو۔ اور مجھے معلوم تھا کہ جسے اغوا کیا جانا ہے اس کے بارے میں جان کر راجہ استاد کی طرح کچھ دیر شنکر دادا بھی بڑبڑائے گا، اور وہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں کسی اعلیٰ انگریز افسر کو تو کیا، معمولی انگریز کارندے پر ہاتھ ڈالنے کا تصور محال تھا، اور پھر یہی ہوا۔ شنکر دادا ڈے سوزا کے بارے میں سن کر ایک دم سٹپٹا گیا اور غیر یقینی سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن رانی، تم حکومت سے ٹکر کیوں لینا چاہتی ہو؟ اور پہلے کبھی تمہارے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ شنکر دادا رک کر بولا، ہم لوگ قانون شکن ہے، اور حکومت خود کو قانون کی محافظ کہتی ہے۔ پھر ٹکراؤ تو کیا ہوگا نا؟ کیا تم اس سے ڈر رہے ہو شنکر دادا؟ ڈرنے کی تو اس میں کوئی بات نہیں۔ قتل، اغوا، لوٹ مار، ڈکیتی اور فریب دہی، یہی تو اپنا دھندا ہے۔ ہاں، کسی انگریز پر اب تک ہاتھ نہیں ڈالا، سو اب یہ بھی صحیح۔ اور شنکر دادا نے آمادگی ظاہر کر دی۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو اب تک لوٹتا رہا تھا، مگر اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جو سارے ہندوستان کو دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے تھے، اور اس کے جرائم کی ایک حد مقرر تھی، اور اس حد میں انگریز حکمران نہیں آتے تھے۔ راجہ استاد ہی کی طرح میں نے شنکر دادا کو بھی یہ تاکید کر دی کہ وہ اور اس کے آدمی چہرہ چھپائے ڈسوزا کے سامنے نہ آئے۔ اور اس کوٹھی کی نشاندہی کون کرے گا رانی جہاں وہ رہتا ہے؟ شنکر دادا نے پوچھا۔ ابھی میرا ایک آدمی تمہارے اور راجہ استاد کے ساتھ جا کر وہ کوٹھی دکھا دے گا، اور میں تمہیں اس کا نام بتا ہی چکی ہوں، اور میرا خیال ہے چہرہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ کہو تو میں اس کے دفتر کا پتہ بھی بتا دوں، دفتر یعنی CID آفس کے اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں۔ اور بتا دو تو زیادہ اچھا ہے، راجہ استاد نے کہا۔ ممکن ہے کوٹھی کی بجائے اسے راستے سے اغوا کرنا زیادہ آسان رہے۔ اور میں نے CID آفس کا پتہ بھی بتا دیا، اور پھر پوچھا، کب تک کام ہونے کی توقع ہے؟ آج ہی رات یا زیادہ سے زیادہ کل رات لگ سکتی ہے۔ کیوں شنکر دادا؟ راجہ استاد مجھے جواب دے کر شنکر دادا سے مخاطب ہوا۔
तुम ठीक कह रहे हो उस्ताद, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर जब उन लोगों ने चाय पी तो मैंने शहजाद को साथ कर दिया और शहजाद से मैंने सिर्फ इतना कहा था कि दोनों डिसोजा की कोठी दिखाकर वापस आ जाए। और शहजाद जब तक वापस ना आ गया मैं कुछ मुस्तरिब सी रही। बज़ाहिर मुझे उस अज़तराब की कोई वजह समझ में नहीं आई। शहजाद लौटा तो कुछ घबराया हुआ सा था। क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसकी घबराहट की वजह दरियाफ़त की। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था खातून, तो मुझे रास्ते में वही मनहूस साधु मिल गया और उसने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। और शहजाद ने बताया। क्या? मैं उछल पड़ी। तुम्हें यकीन है कि वही साधु था? जी हाँ, उसने मुझे अपना नाम भी बताया कि आज शबू का नाम उस कबीस का, और उसने कहा गया था तुमसे। मैंने बेचैनी से पूछा। पहले तो उस हरामजादे ने जे माई का नारा लगाकर मुझे डरा दिया और फिर मेरे सामने आकर कहने लगा कि देवी माई से कहना, वो हमसे छुप नहीं सकती और मेरा नाम शबू है और शबू अपनी देवी के दर्शन करने तुरंत आएगा। और फिर वो चिमटा बचाता हुआ एक तरफ चला गया। हालांकि वक्ती तौर पर शबू का खिलाफी तवक्का जिक्र सुनकर मैं भी जहनी तौर पर परेशान हो गई, मगर शहजाद को यह एहसास नहीं होने दिया। बकवास करता है वो। अगर ऐसा ही होता तो अब तक यहाँ पहुँच जाता, और जो गरजते हैं बरसते नहीं। उसे भला किस तरह मालूम हो सकता है कि मैं कहाँ हूँ? तो फिर उसने मुझे मेकअप के बावजूद कैसे पहचान लिया? शहजाद को इसके इस सवाल ने मुझे चकरा दिया। और शबू जैसी शैतानी कुव्वतें रखने वाले के लिए किसी को मेकअप के बावजूद पहचान लेना कौन सा दुश्वार था? ज़रूरी तो नहीं कि उसने तुम्हें पहचान लिया, और ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है। मैंने शहजाद को समझाया। और घबराने की जरूरत नहीं, अव्वल तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, और अगर पहुँच भी गया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले भी तो मेरे सामने आने से भागता रहा है, और तुम्हें भी ये बात मालूम है। और मेरे समझाने बुझाने का शहजाद पर बस इतना असर हुआ कि उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे से फिक्रमंदी का इज़हार होने लगा। कुछ ही फासले पर मैंने कासम को मुस्तैद और चौकन्ना पाया, और लान में चहन कदमी करते हुए मैं सोचने लगी कि इतने अरसा खामोशी के बाद एक मरतबा फिर शैतानी क़ुव्वतें मेरे ख़िलाफ़ मुतहरक हो चुकी हैं। और मैं अब तक बड़े महाराज की बात भी नहीं बोली कि मुझे बहुत जल्द अपने पास बुला लेगा, और उसने अब तक मुझे नहीं छेड़ा। और रहा शबू, तो उसका मामला मेरे नज़दीक कदरे मुख्तलिफ था। वो ज़ाती तौर पर मेरे हसूल का मुतमनी था। इस दौरान में रहमत ने लान में मेज़ और कुर्सियां लाकर डाल दी, और मैं टहलती हुई कुर्सी से आकर बैठी थी कि मेरी समाज से शबू की आशना मनहूस आवाज़ टकराई, जे देवी माई। और उसने हस्बे मामूल नारा लगाया, और फिर अचानक मुझसे कुछ ही फासले पर ज़ाहिर हो गया। वो चिमटा बचाते हुए महू रक्स था, और मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई, और मेरी रगों में लहू सनसनाने लगा, और आंखों में वो मंजर घूमने लगा जब मुझे बेबस करके अज़ियतें दे रहा था। बैठी रह देवी, दर्शन की प्यासी आंखों को दर्शन करने दे। और वह रक्स करता हुआ मेरे करीब आ गया। अरे ओ अब्दुल, कासम की तेज आवाज़ सुनाई दी। ये साला साधु किधर से अंदर घुस आया? और मालूम नहीं यार, मैं तो गिराई कर रहा था, और फाटक ही से अंदर आया होगा, और किधर से आता? अब्दुल जवाब में बोला और उठकर खड़ा हो गया। फाटक से नहीं, कहीं और से दीवार फांद कर अंदर कूदा है। निकालता हूँ अभी हरामजादे को, कासम ने कहा, और फिर तेज तेज कदम चलता हुआ लान में आ गया। देवी, तेरे मेरे बीच नौकर आएंगे तो पछताएंगे, इन्हें रोक दे। और शबू मुझसे मुखातब हुआ, और ये तेरा मेरा मामला है, इनसे क्या मतलब? शबू गलत नहीं कह रहा था। कासम या अब्दुल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हाँ, ये मुमकिन था कि उन्हें मदाखलत करने की वजह से शबू कोई नुकसान पहुंचा देता, और यही सोचकर मैंने बुलंद आवाज़ में कासम से कहा, इसे मैंने बुलाया है, तुम फाटक पर जाओ। और कासम अब करीब आ चुका था, और मेरी बात सुनकर कहने लगा, ठीक है बेगम साहबा, मगर ये आया किधर से? अबे ओ गामड़ की औलाद, शबू बोल उठा, क्या तू देवी के पुजारियों को देवी के पास आने जाने से रोक सकता है? और ये देखकर मैं चिल्ला गया। शबू अचानक नज़रों से उज्जल हो गया, और कासम की आंखें हैरत से फैल गईं, और वह बिल्कुल बेहसो हरकत अपनी जगह खड़ा हो गया। और ये देख, मैं फिर आ गया। शबू दोबारा ज़ाहिर हो गया। भूत! कासम चीख उठा। उस पर शबू ने जोरदार कहका लगाया, और फिर जे देवी माई का नारा मारकर चिमटा बजाते हुए मेरे चारों तरफ रक्स करने लगा। शबू, अचानक मैं उस पर बरस पड़ी। तू फिर अपनी कमीनगी पर उतर आया, चला जा यहाँ से। अभी तो ठीक है, दर्शन
अभी तो ठीक से दर्शन भी नहीं किए देवी, तूने चेहरा तो छुपा रखा है। अगर एक बार दर्शन करा दे तो चला जाऊंगा। मुझे जाने क्या सूझी के चेहरे से मास्क उतार दिया और चीखी, ले देख। और फिर मैंने उसके खिलाफ कोई अमली कदम उठाने का फैसला किया। भगवान तेरा भला करे देवी, अब तेरा शबू रात को आएगा और उस समय जब तेरे पास कोई और नहीं होगा। और जे देवी माई वो नारा लगाते ही गायब हो गया। कासम अब तक किसी मुजस्मे की तरह चंद कदम के फासले पर खड़ा हुआ था और ऐसी ही हालत अब्दुल की थी, जो खुरपी हाथ में लिए आंखें फाड़े उस तरफ देखे जा रहा था जहां चंद लम्हे पहले शबू मौजूद था। दोनों ही की हालत काबिले दीद थी और उन्होंने शायद अपनी सारी जिंदगी में ऐसा हैरान कुन मंजर नहीं देखा था। और मेरे हाथ में चेहरे से उतरा हुआ मास्क था और वो भी यकीनन उन दोनों के लिए हैरत अंगेज थे। और मैं कुर्सी पर बैठ गई और मास्क को मेज पर रख दिया। कासम, यहाँ खड़े हो, और मैं तुमको फाटक पर जाकर खड़े होने को कहा था। जय जी बेगम साहबा, वो हिलाया, मगर वो कौन था? मेरा एक पुजारी, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, जैसे ये कोई खिलाफ मामूल बात ना हो। और अगर तुमने नहीं सुना तो वो मुझे देवी कह रहा था और मेरा दर्शन करने आया था। आप देवी? मगर राजा उस्ताद ने बताया था कि आप बम्बई की रानी हैं। कासम लड़ती हुई आवाज़ में बोला, हाँ, मैं बम्बई की रानी भी हूँ और देवी भी, और मेरा पूरा नाम रानी देवी है। और देवी के पुजारी भी होते हैं। यही नहीं, मेरे और बहुत से पुजारी हैं जिन्हें तुम आते जाते देखोगे। मगर डरने की ज़रूरत नहीं, ना किसी से उसका तज़किरा करने की ज़रूरत है। ऐसी बातें किसी पर ज़ाहिर नहीं करते, वरना मालूम है क्या होता है। और आदमी को सोते सोते अचानक ऐसे लगता है जैसे कोई नादीदा वजूद उसका गला घोंट रहा है और फिर सुबह वह मुर्दा हालत में पाया जाता है। नहीं, कासम खौफजदा होकर गगयाया, मैं किसी से नहीं कहूँगा। और उसी वक्त मुझे एक और ख्याल आया, और उस तरह हर वक्त घर में शीतल शहजादियाँ मेरे चेहरे पर मास्क चढ़ाए रखने की ज़रूरत ना रहती। और सुनो कासम, आज तुमने मेरा असल चेहरा तो देख लिया। इस कोठी में दो और चेहरे ऐसे हैं जो तुमने नहीं देखे, वो भी देख लो। और याद रखो, ये जिक्र भी तुम्हें किसी से नहीं करना। आओ मेरे साथ। और मैं खड़ी हो गई। फिर अंदर जाते हुए अब्दुल को भी साथ ले लिया। अंदर रहमत और गनी भी मौजूद थे और चारों नए मुलाजमीन की मौजूदगी में शहजाद और शीतल के चेहरों में से मैंने मास्क उतरवा दिए। और ये लोग अब अपने हैं, इनसे चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ, अजनबियों के सामने मास्क के बगैर नहीं आना। और मैंने शीतल और शहजाद को ताकीद की, और ये आज़ादी सिर्फ इस इमारत की हदूद तक है, और वो भी इस सूरत में जब कोई अजनबी इमारत में मौजूद ना हो। कासम वगैरह चले गए तो शहजाद ने कहा, खातून, ये आपने अच्छा नहीं किया। हर वक्त मास्क पहने रहने से निजात मिल गई। और जवाबन मैं मुस्कुरा दी। वो अंदर था, उसे खबर नहीं थी कि मुझे किस लिए मास्क उतारना पड़ा। और उसी कोठी में शब्बू की आमद का पता चल जाता तो इस वक्त खुश नज़र ना आ रहा होता। और मैं इस वक्त सोच रही थी कि शब्बू ने रात को आने के लिए कहा था, क्या वाकई वो आएगा? और उसी सोचो विचार में खाने का वक्त हो गया और मैंने खाना खाया और फिर चहलकदमी के लिए आ गई। कुछ ही देर के बाद मुझे फाटक की तरफ से एक कासम की आवाज़ सुनाई दी। वो फाटक का ज़ैली दरवाज़ा खोलकर किसी से पूछ रहा है कि किससे मिलना है? सरदार जी, रानी जी से। जवाब में मैंने अरशाद हुसैन की आवाज़ सुनी, और मेरा नाम हरदयाल सिंह है जी, उनको बोलो जाकर। आप यहीं ठहरो सरदार जी, मैं पूछता हूँ। और कासम ये कहकर मुड़ा। और आने दो सरदार जी को, मैंने बुलंद आवाज़ में कासम को कहा। आइए सरदार जी। मेरी इजाज़त मिलने के बाद कासम ज़ैली दरवाजे से एक तरफ हटते हुए बोला, और सर पर पगड़ी बांधे और चेहरा घनी दाढ़ी मूंछों के पीछे छुपाए अरशाद हुसैन अंदर दाखिल हुआ। लान में अभी तक कुर्सियां पड़ी थीं और मैंने उसे वहीं बिठा लिया। और उसने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि आप कोठी में अब तो और नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैंने 4 नए मुलाजिम और रख लिए। और मैंने बताया कि चौकीदार, माली, बावर्ची और ऊपर के काम के लिए मज़ीद 1 मुलाजिम, और 2 मुलाजिम पहले ही से आपके पास थे। गोए अब 6 मुलाजिम हो गए। और मुलाजमीन की खासी आदी मालूम होती हैं आप। कभी कभी तो आपके आदात व अतवार देखकर वाकई ये मालूम होता है कि आप किसी रियासत की शहजादी हैं। हाँ, ये चेहरे पर आज मेकअप नज़र नहीं आ रहा, क्या बात है।
चेहरा तो अजनबियों से छुपाया जाता है, आप मेरे लिए कौन से अजनबी हैं। और एक खुशखबरी सुना दूं आपको, माँ जी जिंदा बच गई हैं और उन्हें बर वक्त तभी अमदाद मिल गई थी और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत ठीक नहीं, लेकिन जो डॉक्टरों का इलाज कर रहे हैं वो कहते हैं कि माँ जी की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं और गोली उनके सीने से निकाल ली गई थी। और ये सुनकर वाकई बेहद खुशी हुई अरशाद, मैंने इज़हार मसरत किया। कल आपने जो कारनामा अंजाम दिया उस पर मेरे तमाम साथी बहुत खुश हैं और मज़ीद जो कारनामा अंजाम देने वाली हैं उस पर भी सभी पूरी तरह मुतफिक हैं। और मेरी तवस्सुत से उन्होंने ये पेशकश की है कि डिसूज़ा के अगवा में वो आपकी हर मुमकिन मदद करने पर आमादा हैं। उसे अगवा करने के बाद अगर जगह चाहिए तो ये बंदोबस्त भी हो सकता है और डिसूज़ा के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करने से भी इनकार नहीं। अलबत्ता उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि अमलन वो भी डिसूज़ा के अगवा में शरीक रहें। अब तो ये मुमकिन नहीं रहा अरशाद, अगवा के सिलसिले में जो तैयारियां ज़रूरी थी वो मैं कर चुकी हूँ और ज़्यादा भीड़ भाड़ से कभी कभी बात बिगड़ जाती है। ये तो आप ठीक कह रही हैं, तो अपने साथियों के जज्बात का इज़हार कर रहा था और वैसे आपने बड़ी तेज़ी दिखाई। आज रात या फिर कल रात तक डिसूज़ा मेरे कब्जे में होगा और इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मैंने बताया कि बाकी आप जानें कि हुकूमत कब और किस तरह आपको अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करना है। हाँ, मुझे एक बात पूछना थी, क्या आप पार्क सर्कस वाले मकान की निगरानी अब तक की जा रही है? जी हाँ, अरशाद हुसैन ने जवाब दिया। महकमा वालों का ख्याल है कि आपके दोनों मुलाजमीन वहाँ ज़रूर आएंगे और इसलिए कि मकान में खासा कीमती साजो सामान मौजूद है। उसके अलावा ये कि उन्होंने मालिक मकान से भी राब्ता कायम कर लिया है और मालिक मकान को यह ताकीद की गई कि जब भी आपके मुलाजमीन उससे मिले वो उन्हें किसी भी बहाने रोक कर करीबी थाने में ये इतला दे दें। क्यों कि आप वहाँ से अपना फर्नीचर वगैरह निकालना चाहती हैं। फर्नीचर से तो मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, हाँ किताबों का ज़रूर ख्याल है जो कई अलमारियों में महफूज हैं। बहरहाल अगर खुफिया पुलिस वाले वहाँ दाम बिछाए बैठे हैं तो फ़िलहाल किताबों को भी सब्र करना पड़ेगा। आपने अच्छा किया कि मुझे सूरत हाल से आगाह कर दिया, मैं मुहतात रहूँगी। और इस वक्त अरशाद हुसैन से ज़्यादा देर नहीं बैठा, उसे कोई काम था और मैंने भी उसे नहीं रोका, वो चला गया। मालूम नहीं इस रात मुझे क्यों बेचैनी सी महसूस होने लगी और बज़ाहिर इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है और मैंने सोचा कि शायद इसकी वजह ये कि शब्बू ने उस रात आने को कहा था, मगर पहले तो कभी मुझसे उसे खौफ या बेचैनी महसूस नहीं हुई। फिर आज क्या ख़ास बात है और मैं सोचती रही मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोठी से निकल कर कहीं चले जाऊं और ये रात अपनी कोठी में गुजारने के बजाय कहीं और गुजारूं, लेकिन कहाँ और क्यों, और मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। और एक बार ये भी ख्याल आया कि राजा उस्ताद के घर चलूं और फिर इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया, क्या खबर आज रात राजा उस्ताद और हुमायूं शंकर दादा के साथ मिलकर डिसूज़ा को अगवा करने गए हों या जाने वाले हों। और ये सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया और लिबास तब्दील करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। तबीयत में अस्तराब इस कदर था कि मैं लेटे लेटे उठकर टहलने लगी और सारी कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था। अरसा दराज से मुझे अजीम और नेक रूह महिमन की पुरअसरार सरगोशियाँ भी सुनाई नहीं दी और महिमन की तरफ से मुझे कोई नई हदायत नहीं मिली और मैंने महिमन की सरगोशियों के नतीजे में नई शख्सियत अपनाई थी। और महिमन ही ने मेरी इस गलती की निशानदेही की थी कि मुझे पहाड़ों से उतरकर हमवार मैदानों में आने के बाद अपने असल नाम और शख्सियत की पर्दापोशी करना चाहिए थी। सो मैंने अब इसी पर्दापोशी की खातिर कलकत्ते में अज़े सरे नो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और इस तरह खुफिया पुलिस के महकमों को तो मैं धोखा देने में कामयाब हो गई, मगर शब्बू ने मेरा सुराग लगा लिया। उसने मुझे अगवा करके ले जाने के बाद जिस तरह जहनी और जिस्मानी अजियत दी थी वो जैसे मेरी रूह पर कर्ज थी। और आज शाम उसे अपनी कोठी में देखकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकी थी। एक तो मुझे कासम की मुदाखलत ने उतनी मोहलत नहीं दी और दोम शब्बू कुछ ज़्यादा देर रुक कर खिलाफ तवक्का फ़ौरन गायब हो गया और मैं जब टहलते ठहरते थक गई तो दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई और अब मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मेरे ज़हन में गनूदगी तारी होती जा रही थी कि अचानक
मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। कमरे में हल्का नीला बल्ब जल रहा था, लेकिन इस वक्त बल्ब की रोशनी मंद पड़ गई और कमरे के अंदर धुआं भरा हुआ था और फिर चंद ही लम्हों में धुआं छट गया और मैंने बड़े महाराज को ज़ाहिर होते देखा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ शब्बू भी नजर आ रहा था और मैंने उठकर बैठना चाहा, लेकिन अपने जिस्म को खफूफ सी हरकत भी न दे सकी और मेरे असाब शल हो गए। पहले भी जब बड़े महाराज को मैंने देखा था तो ऐसा ही हुआ था और ये पहली कोठी के दौरान के याम की बात थी। इस वक्त पहली मर्तबा बड़े महाराज से मेरी मुलाकात हुई। शब्बू, उसे अब तक हमने बहुत ढील दे दी। अचानक बड़े महाराज की आवाज़ कमरे में गूंजी और मैं समझ चुकी थी कि इस वक्त मैं बड़े महाराज की पुरअसरार शैतानी क़ुव्वतों के ज़ेरे असर हूँ और वो अब शब्बू से कह रहा था कि अब समय आ गया है कि इसे और ढील ना दी जाए, बांध लो इसे और साथ ले चल। और सुन, तूने हमसे इसके विषय में जो प्रार्थना की थी सो हमने स्वीकार कर ली, परंतु ये एक ही रात इसी दिशा में तेरे पास रहेगी और ये तेरी इस मेहनत का फल होगा जो तूने इसका खोज निकाल लिया। और इन अल्फाज के साथ ही शब्बू मेरी तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि मुझके चंद कदम के फासले पर शब्बू आकर रुक गया और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसके होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे और उसी के साथ मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म को किसी नादीदा शय से बांधा जा रहा है और मैंने उसकी तरफ से नज़रें हटाना चाहीं ताकि वो अमल मुझ पर कर रहा है ना कर सके, लेकिन एक अनजानी कशिश मेरे और उसकी नज़रों के दरमियान मौजूद थी और मैं नज़रें ना हटा सकी। मेरा जिस्म एक नादीदा गिरफ्त में आ गया और फिर मैंने शब्बू को हाथ से इशारा करते देखा। उसके साथ ही मेरा जिस्म फिजा में बुलंद होने लगा। बांध ले इसे का मतलब अब मेरी समझ में आया था। फिर शब्बू एक झटके से मुड़ा और उस झटके का असर मैंने अपने जिस्म पर भी महसूस किया और मुझे यूं लगा जैसे मेरा जिस्म रस्सी से बंधा हो और किसी ने रस्सी को झटका देकर खींचा हो। बड़े महाराज ने मेरे जिस्म को हवा में तैरते देखा और उसके होठों पर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी और अचानक उसने दोनों हाथ बुलंद किए और कमरे में एक बार फिर धुआं भर गया। इस मर्तबा धुआं जल्द नहीं छटा और मुझे हर तरफ धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आया और मेरा दम घुटा जा रहा था। इस आलम में मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अब मेरे लिए इस धुएं में सांस लेना भी दूभर हो गया और मेरे ज़हन पर अब अंधेरे की चादर फैलती जा रही थी और उनमें तेज हवाओं का शोर सुन रही थी। उन तेज हवाओं का शोर बढ़ते बढ़ते जैसे मेरी समात का हिस्सा बन गया और होशो हवास खोने से पहले मुझे इतना एहसास ज़रूर था कि मैं अगवा किए जा रही हूँ और अगवा करने वाले बड़े महाराज और शब्बू हैं और वो दोनों ही हैरत अंगेज पुरअसरार शैतानी क़ुव्वतों के मालिक हैं। उन्होंने मुझे कतई बेबस कर दिया था और उस गैर मामूली पुरअसरार तजर्बे से मुझे ये भी मालूम हो गया कि पहले शब्बू ने मेरे अगवा की खातिर क्या तदबीर आजमाई होगी और मैंने खुद अपने जिस्म को फिजा में बुलंद होते देखा था। फिर मेरा जिस्म फिजा में तैरने लगा और ज़्यादा देर तक मैं अपने हवास बहाल न रख सकी और बेहोश हो गई।